السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مرزا ارشد اللہ خان غالب کے ایک بہت ہی اہم واقعہ کو پیش کرنے جا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسی واقعے کی بدولت مرزا ارشد اللہ خان غالب کو مغل کے آخری حکمراں بہادر شاہ ظفر کے دربار میں اسے آنے کا موقع ملا، چونکہ اس سے قبل محمد ابراہیم ذوق وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد اور شاہی دربار کے شاعر بھی تھے، اس لیے اسے کافی عزت اور کافی اہم مقام حاصل تھا۔ تو ایک واقعہ نے مرزا غالب کو بہت ہی مشہور کر دیا۔ ایسے تو اپنی زندگی میں مرزا غالب کی گفتگو کا جو انداز تھا وہ شاعرانہ ہی تھا اور بہت ہی دلچسپ انسان تھے، اس لیے لوگ اسے اکثر بات کرتے کرتے بہت ہی دلچسپی لیتے تھے اس سے بات کرنے میں۔ تو مرزا غالب ایک چوراہے پہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ وہاں سے محمد ابراہیم ذوق جو بادشاہ سلامت بہادر شاہ ظفر کے دربار کا شاہی شاعر اور بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، تو مرزا غالب اسے دیکھ کر ایک طنز کستے ہیں، شاعرانہ انداز میں طنز کستے ہیں اور کہتے ہیں، بنا ہے شاہ کا مصاحب، بنا ہے شاہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا۔ اس کے بعد مرزا غالب کے جو ارد گرد اس کے احباب تھے، دوست احباب، وہ سب بہت زور سے ہنسنے لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو شاعر اور استاد ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے اسے بہت خراب لگتا ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ ساتھی تھے اسے بھی بہت خراب لگتا ہے، چونکہ وہ پالکی پہ سوار ہو کر بہادر شاہ ظفر کے دربار ہی جا رہے تھے، تو اس کے کچھ ساتھی بھی پیچھے پیچھے تھے۔ تو بہادر شاہ ظفر سے استاد ذوق کے جو چاہنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ حضور آج تو غضب ہی ہو گیا۔ بولا کیا ہوا؟ بولے کیا کہوں، چوراہے پہ بیٹھا ایک شاعر ہے جو استاد کا مذاق اڑایا اور اس کے اوپر طنز کسا۔ بولا اچھا وہ کون ہے؟ تو بولا ارشد اللہ خان غالب نام اس کا ہے۔ بولا ٹھیک ہے، اگلے مشاعرے میں اسے بھی مشاعرہ کا دعوت بھیج دیا جائے۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ مرزا غالب کو آپ مشاعرہ کا دعوت دے دیجئے۔ تو بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق مرزا ارشد اللہ خان غالب کو مشاعرہ کا دربار میں آنے کی دعوت دے دیتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز بتا دیں کہ مرزا غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1796 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی تھی، یو پی کے آگرہ میں 27 دسمبر 1796 عیسوی، اور اس کی وفات ہوئی تھی 15 فروری 1869 عیسوی کو۔ اور جو استاد ذوق ہیں ان کی پیدائش
1790 और वफ़ात 1854 ईस्वी को हुई थी। ये दोनों का डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ है। अब ये दोनों की शोहरत का मुआवजा किया जाए तो उस्ताद ज़ौक़ की शोहरत बहुत ज़्यादा थी बनिस्बत मिर्ज़ा गालिब की, क्योंकि वो शाही दरबार का एक हिस्सा था और मुस्तकिल वहाँ का शायर था और उस्ताद भी था बहादुर शाह ज़फ़र का, क्योंकि बादशाह वक्त का, तो उसकी इज़्ज़त भी ज़्यादा थी और शोहरत भी ज़्यादा थी। और मिर्ज़ा गालिब उस वक्त दुकान में, सड़कों पे, चौराहे पे किसी से भी गुफ्तगू करते हुए उसका जो अंदाज़ होता था वो शायराना, क्योंकि उसके रग रग में शेर व शायरी रचा बसा हुआ था और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू करते थे, क्योंकि उर्दू और फ़ारसी के मैदान में बहुत महारत हासिल थी। तो मिर्ज़ा अरशदुल्ला खां गालिब को जो वाक़या हुआ, तंज़िया वाक़या, उसके बाद उसे दरबार में मुशायरा में शामिल होने की दावत मिलती है और मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि ठीक है, हम दरबार में आएंगे, मुशायरा में शामिल होंगे। तो वक्त जब मुशायरा का करीब आता है तो सभी लोग पहुंच जाते हैं, जितने भी शायर थे दरबार के और जिसे दावत मिली थी। तो मिर्ज़ा अरशदुल्ला खां गालिब भी दरबार में पहुंचते हैं, चूँकि वो नया था दरबार में और उसकी उतनी अहमियत नहीं थी, फिर भी उसका इस्तकबाल किया जाता है बादशाह सलामत के दरबार में। तो मिर्ज़ा गालिब बहुत खुश होते हैं कि बादशाह सलामत के दरबार में पहली बार मौका मिला है, चलो इस तंजिया वाक़या ही के बदौलत से ही दरबार में आने का मौका तो मिला। बहरकैफ पहले का जो मुशायरा का जो सिस्टम था, सब खामोशी के साथ बैठा रहता था और जिसके करीब जब बादशाह सलामत हुक्म देते थे कि हाँ आप, या जिससे कहते थे बादशाह सलामत कि हाँ आप शेर पढ़िए या नज़्म पढ़िए, गज़ल पढ़िए, तो उसके सामने चराग पेश किया जाता था। जिसके सामने चराग पेश किया जाता था वही पढ़ता था, बाकी सबको खामोशी के साथ शेर और नज़्म या गज़ल जो भी पेश करते थे उसे सुनते थे। और अगल बगल में जो रहते थे छोटे मोटे शायर भी दरबार में, और दरबार के लोग वो उस शेर को लिखते थे, नकल कर लेते थे, ताकि उसको एक बावक्त काम आए या कहीं और दिया जाए, जो आज किताब की शक्ल में मौजूद हैं। उन्हीं लोगों की लिखी हुई जो लिख लेते थे, तो आज जमा कर कर एक मिर्ज़ा गालिब की बहुत बड़ी बड़ी थीसिस और गज़लियात, नज़में और उर्दू नसर जो है, जिसमें मिर्ज़ा अरशदुल्ला खां गालिब के जो खतूत हैं, बिलखुसूस खतूत, उर्दू की इतनी तरक्की होने के बावजूद भी आज भी मिर्ज़ा गालिब के खतूत का जवाब पैदा नहीं हुआ। आज भी इतनी तरक्की के बाद भी आज ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या पीएचडी में मिर्ज़ा अरशदुल्ला खां गालिब के लिखी हुई खतूत और नज़म और गज़लियात, उसके थीसिस के ऊपर रिसर्च होती है और लोग पीएचडी करते हैं उसके ऊपर, मिर्ज़ा अरशदुल्ला खां गालिब के ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी शख्सियत, आज जो उसकी शोहरत है, तो वो शोहरत की जो शुरुआत होती है कहाँ से, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मिर्ज़ा गालिब की शोहरत की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। तो मिर्ज़ा गालिब जब महफ़िल में बैठते हैं तो उस्ताद ज़ौक़ के जो चाहने वाले थे, उसी के चाहने वाले कहते हैं कि हुज़ूर आला उस्ताद ज़ौक़ के शान में गुस्ताखी की। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि उस्ताद ज़ौक़ के शान में गुस्ताखी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा कौन है
जो उस्ताद ज़ौक़ के शान में गुस्ताखी कर सकता है, तो दूसरे उस्ताद ज़ौक़ के जो चाहने वाले हैं, एक दूसरे शख्स ने खड़ा होकर कहता है कि हुजूर वो मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ां गालिब हैं जिन्होंने उस्ताद ज़ौक़ का मजाक उड़ाया। तो बादशाह सलामत पूछते हैं, क्या ये सच है कि आपने मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ां गालिब, क्या आपने उस्ताद ज़ौक़ का मजाक उड़ाया? तो हुजूर कहता है, जी हाँ, लेकिन मैंने उनके ऊपर तंज नहीं कसा, बल्कि मैंने उस्ताद ज़ौक़ के ऊपर एक गज़ल लिखी है। मैंने उस्ताद ज़ौक़ की शान में एक गज़ल लिखी है। तो बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं, अच्छा आपने गज़ल लिखी है? बोले जी हाँ, मैंने उसके शान में गज़ल लिखी है। तो बादशाह सलामत कहते हैं, पेश किया जाए। अगर आपने गज़ल लिखी है तो वो गज़ल पेश किया जाए। तो मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ां गालिब कहते हैं, इजाज़त हो तो मैं पेश करता हूँ। तो कहते हैं इजाज़त है। तो सम्मा जो है, जो समा जला हुआ रहता है, उसे उस समय को ले आकर मिर्ज़ा गालिब के सामने रख दिया जाता है। और ये समा का रखना इस बात की दलील है कि अब वो गज़ल पेश करेंगे और बाकी सब खामोशी के साथ सुनेंगे और वाह वाह जो है दाद देंगे। तो समा उसके सामने रख दी जाती है। मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ां गालिब अपने जेब से एक कागज़ निकालते हैं और हाथ में ले लेते हैं। और हाथ में लेने के बाद वो कहते हैं कि हुजूर आला समाप्त फरमाए, बना है साह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बना है साह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वरना शहर में, वरना, और दूसरा मिसरा कहता है मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ां गालिब, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इतना कहने के बाद पूरी महफिल वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब कहने लगते हैं। तो फिर कहते हैं मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ां गालिब, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। जब पूरी दात मिलने लगती है कि वाह, मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ां गालिब ने क्या गज़ल लिखी है उस्ताद ज़ौक़ के शान में, तो बहादुर शाह ज़फ़र जो बादशाह हैं वो कहते हैं कि जब मिसरा इतना खूबसूरत है तो पूरी गज़ल कितनी खूबसूरत होगी। अगर आपको ज़हमत ना हो तो पूरी गज़ल सुनाएं। चूँकि मिर्ज़ा गालिब अपने पॉकेट से जो कागज़ निकाल के रखते हैं, उस कागज़ को लेके देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं पूरी गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ। इस वीडियो में आपको पूरी गज़ल तो नहीं, बस कुछ गज़ल के अशार को पेश करूँगा। बाकी इस गज़ल की पूरी गज़ल जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग उसे देख लेंगे, ठीक है। तो मैं उस गज़ल का कुछ हिस्सा को पेश कर रहा हूँ। मिर्ज़ा गालिब दूसरे मिसरे में कहते हैं, हर एक बात पे कहते हो कि तुम क्या तू है, हर एक बात पे कहते हो कि तुम क्या तू है, हर एक बात पे कहते हो कि तुम क्या तू है। उसके बाद दूसरा मिसरा, तुम ही कहो कि बेअंदाज गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो
कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। ये मिसरा को सुनने के बाद महफ़िल में जो शायरा जो वहाँ पे शायर बैठे हुए रहते हैं, तमाम शायर वाह 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 कहने लगते हैं कि मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान गालिब ने क्या खूबसूरत गज़ल लिखी है। चूँकि वो तो कागज़ देख देख के पढ़ रहे थे, कागज़ को देख रहे थे और पढ़ रहे थे। फिर कहते हैं रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं हैं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं हैं कायल। जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। फिर अरशदुल्ला ख़ान गालिब कहते हैं टपक रहा है लहू बदन से ज़मीं पे पैरहन। टपक रहा है लहू बदन से ज़मीं पर पैरहन। उसके बाद कहते हैं हमारी जेब को अब हाजते रफ़ू क्या है। इसी तरह गोया मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान गालिब पूरा मुकम्मल बहुत लंबा चौड़ा जो गज़ल था वो वहाँ बैठे बैठे पूरे महफ़िल को सुना देते हैं। जब महफ़िल ख़त्म होती है तो मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान गालिब अपना वो कागज़ वहीं पे छोड़ देते हैं। तो उस्ताद ज़ौक़ और उसके कुछ साथी और बादशाह सलामत कहते हैं कि वो जो कागज़ मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान गालिब गज़ल लिखे हैं उस कागज़ को लेकर आओ। तो लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान गालिब जिस कागज़ को देखकर गज़ल पढ़ रहे थे उस कागज़ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बिल्कुल सादा था, कोरा सादा, फुल ब्लैंक, कुछ लिखा हुआ नहीं था और सिर्फ उसे देख रहा था, पढ़ रहा था। तो बादशाह सलामत को ये समझ में आ गई कि ये जो मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान गालिब हैं ये तंज ही किया था उस्ताद ज़ौक़ के ऊपर। बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। चूँकि ये शायर थे तो शायराना अंदाज़ में वो उस्ताद ज़ौक़ के ऊपर तंज ही किया था। लेकिन जब महफ़िल में बुलाया गया और तंज के मुतालिक कहा गया तो मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान गालिब वो शख्सियत थे कि उसी महफ़िल में बैठे बैठे पूरी गज़ल बगैर लिखे हुए, बगैर सोचे हुए, बगैर दिमाग में बैठाए हुए, मतलब वो दिमाग अल्लाह ने उसे अता फ़रमाई थी कि वो वहाँ पे बैठे बैठे मुकम्मल एक गज़ल को पेश कर देते हैं। और इसकी इस काबिलियत को देखकर बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि आज के बाद मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान गालिब को ये पैगाम भेज दिया जाए। अपने दरबारी से कहते हैं कि मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान गालिब से के पास ये पैगाम भेज दिया जाए कि वो आज के बाद इधर उधर चौराहे पे बैठकर अपने अशार को बर्बाद ना करें, बल्कि वो अपने अशार को आकर बादशाह सलामत के दरबार में जब मुशायरा हो तो वहाँ पे पेश करें। और इसके एवज़ में बादशाह सलामत उसे बहुत बड़ी वजीफ़ा दिया करते थे, बहुत बड़ा एक वजीफ़ा दिया जाता था मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान गालिब को। ऐसे तो वजीफ़ा मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान गालिब को बहुत सारे जगह से आती थी, लेकिन बादशाह सलामत के दरबार में जब उसे एज़ ए शायर, एज़ ए पोइट का जो मतलब शायर मुंतखब कर लिया जाता है, मुंतखब करने के बाद जब उसकी मुंतखबत हो जाती है, जब उसे दरबार में शामिल कर लिया जाता है बहैसियत
शायर तो उसकी शोहरत बेमिसाल हो जाती है। उसके बाद उसकी शोहरत से दरबार के बहुत सारे शायर जलने लगते हैं। चूँकि अल्लाह ने मिर्ज़ा अरशदुल्ला खां गालिब के ज़बान में वो तासीर दी थी और वो मतलब बयान करने का अंदाज़ था कि वो अगर नसर भी कहते थे तो ऐसा लगता था कि कोई नज़्म है या कोई शेर है। बाद में उस्ताद ज़ौक़ भी उससे जलने लगे, क्योंकि इससे कबल मिर्ज़ा गालिब के आने से कबल उस्ताद ज़ौक़ ही वाहिद थे जो बादशाह सलामत के दरबार का शान था। लेकिन मिर्ज़ा गालिब के आने के बाद इसकी शोहरत इतनी बढ़ी कि पूरी महफ़िल में मिर्ज़ा अरशदुल्ला खां गालिब के सामने कोई भी शायर बहुत फीका नज़र आता था। उस्ताद ज़ौक़ भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। तो ये थी उसकी ज़िंदगी की कामयाबी की वजह, और यही एक तंज है जो मिर्ज़ा अरशदुल्ला खां गालिब को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।